आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। धन्यवाद साहब आ गया, संस्था आ गया, साथ ही आया मैं साथ ही आया। धन्यवाद साहब आया, सब आ गया। पठानी है, पठानी पठान साहब ये सब ठीक है, सब देव। This red board, it's a math is a very logical subject, and our mathematics lab has been created with dexterity. Even every wall and every color on it represents some logic. Like this is south side, and hence is stability and strength. And then the red color on it shows creativity. So this wall is suitable for concepts like algebra. So we have pasted this photos of great mathematicians, and we have the board of algebraic annotator. Now this is angle rotator, and my friend Manya is going to explain this. Good morning, sir. This is angle rotator. We have placed the angle of 90 degree, and I have marked the angle of 60 degree. This angle is 60 degree, and this angle is 30 degree. If we sum both the angles, it will equal to 90 degree. So these both angles are complementary to each other. So basically, we can find complementary angles by visual representation. So now we are proceeding towards the east direction. East direction signifies creativity and inspiration. Which class? This was very good. Class you are doing. This can be used for any class 6 to 12 to every class. Different concepts can be demonstrated within that. And the yellow color one signifies enlightenment, making it suitable for concepts like area, parameter, and volume. And area, parameter, and volume we use for class 1st to class 12. These are mathematical students who study in class 11th and 12th. You will be amazed to know the history of this. Basically, Lord Mahavira, who is the 24th Tirthankara of Jainism, actually gave the concept of PNC. When he used to go to give the preachings, there were different places where he used to go. So there were various options and various paths available. So through PNC, he used to select the most suitable path which he would follow. So he gave the concept and the formulas like NCR and NPR which we are using today. Also, Mahavira is a great mathematician. He told us that he is a great mathematician. Now heading towards this wall, this is north direction, which signifies prosperity. The green color shows growth. So now this concept will be explained to you by Manu. Sir, this is coordinate geometry demonstrator. Through this, we can analyze different types of data by bar graph. And if you want to find out any address which you don't know, what will you do? You will simply take out the Google Maps and see the location. But suppose this is wrong, Latin.
through this we can solve any sort of equations. I have taken equation x plus 2 is equal to 3. This is a very simple equation. To find the value of x, I will take the plus 2 sign to the other side, which will convert into minus 2. X is equal to 3 minus 2. When the x value comes out 1, it is by the division method. And through balancing method, there is on the right side there are 3. And the mass lab has been created with complete dexterity. So concepts like perimeter, area, and volume, we use it from class 1st to class 12. So it is very useful. Now I'll take it towards this center focal point. And this table has been very systematically placed over here. It utilizes all the energies. So it is a balanced graph. Now you may give it a try. They are very brainstorming puzzles. So like this is a T can be prepared with it. T, the letter T. The letter T. Students is raising that, right? Shall I help you with this? If you can try it. Now my real talent comes. Yes. That's why. Okay. I just tried degree, but no. It is not related to degree. Don't in your mind, have to take it on. Done. थोड़ा मूवमेंट करिए सर. Answer G, please. This way, no? So that. Yeah. That's Welcome to the multitasking class where you're going. I just want to say that we are the first in college to introduce this type of class. I would like to. we'll visit this way. Gives us दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें. हमारे वहाँ से सरस्वती है. हाँ, दुनिया भी कैसा समझता है. So
भारतीय परंपरा है, हमारे अतिथियों का स्वागत जो है करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले लिए मैं बसंत जी नवलखा आप बता रहे हैं और प्रत्येक दिन मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान अशोक जी सुनाना थोड़ा पैरों का नेतृत्व करिए। लोग श्रीमान सम्माननीय भामासा श्री राज जी बंसाली, श्रीमती नैन्सी बंसाली परिवार द्वारा श्री जैन पब्लिक स्कूल के परिसर में चेतन कुमारी बंसाली ब्लॉक एवं हंस बंसाली विंग के लोकार्पण एवं भामासा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राज जी बंसाली साहब। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान सांतेल जी साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान जयचंद्र शब्दागर साहब, श्रीमती नैन्सी जी बंसाली। सुरेंद्र जी बांटी आने वाले थे, फ्लाइट लेट हो गई। वो उन्होंने कहा मैं पहुंचूंगा सही, अब कब पहुंचूंगा कुछ कैंसिल होगा, आऊँगा जरूर के। उनकी फ्लाइट लेट हो गई इसलिए पहुंच नहीं पाए। डॉक्टर धनपत जी कोचर, निहाल चंद जी कोचर, चंपक जी स्वर्ण, मानचंद जी कोचर, इंद्रन स्वर्ण, कन्याला जी बोथरा, उपस्थित सभी भामासा समाज के गणमान्य लोग, बसंत जी साहब है, निर्मल जी हैं, सभी लोग जो चिकनी साहब है, समेत समाज के लोग, मैनेजमेंट के सभी सदस्य, सीओ सर, दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र जी और सिंधिया जी, स्कूल प्रिंसिपल रूपा सिंह जी और कविता जी, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर, सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। संस्था के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। बाकी जो भी बात दूसरी बात बात हुई, मेरी दिवाली की बात हुई, इनसे 2 बार से बात हुई थी और संजोग से ये जब आए तो मैं यहाँ था नहीं था, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी के जाता हूँ, मुझे सकांति में जाना था। इनका भी प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता था, मेरा भी प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता था। उस समय इनको माणक जी ने, राकेश जी ने दिखाया था। बाकी जो भी बीच में बात जो माणक जी द्वारा होती थी, आपकी बातचीत तथा वास्तव मैसेज से हमने ये महसूस किया कि आप बहुत ही शर्मना, बहुत ही सुलझे हुए विचारों के धनी है, समय के बहुत पाबंद है। ये हमने सिर्फ वास्तव मैसेज से, क्योंकि मैंने माणक जी को कहा यार मेरी बात करवा, तो इन्होंने समय दिया कि 10 बजे, एक्चुअली 10 बजे इनका फोन आ गया, 1 मिनट भी इधर नहीं। मुझे याद है वो बात आज। माणक जी जैसे मेरे पास आए तो फोन की घंटी बज गई। मतलब कितना समय का ये आप पाबंद है, जो कि आज मैं और आप सब लोग देख रहे हैं। आप उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी हैं। कल सुबह जब आपसे मेरी मुलाकात रेलवे स्टेशन हुई तो मैंने जो समझा वो साक्षात पाया मैंने इनके अंदर। श्रीमान राम जी बंसाली को श्री जैन स्कूल के जोड़ने के लिए मैं श्री महेंद्र जी चौधरी जो हमारे बीच में विराजमान है, श्री श्रवण जी अग्रवाल का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने शिक्षा के इस यज्ञ में पुण्य कार्य कराने में सहयोग दिया। इस कड़ी में राकेश जी कोचर और मानव जी कोचर ने भी सहयोग दिया। जो एनवायरमेंट अब चेंज हो रहा है, हालांकि 2 साल पहले तक मेरे पास पेरेंट्स के फोन आते तो मैंने कहता यार ऐसी मतलब आप समझो इस बात को, बच्चे को कमजोर मत हो। पर जब जो वातावरण चेंज हो रहा है उसमें अब एसी बहुत जरूरी हो गया। उस फायदे की वजह से जो न्यूटिक जो बच्चों की कमजोर पसीने से जो कमजोर होती है अंदर, तो इसलिए एसी लगाना बहुत जरूरी हो गया। तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम अगली गर्मी से पहले एसी लगाएं। और हमारे पास 80 तो क्लासरूम है, एक्टिविटी रूम वो सब अलग है। उसके लिए हमने एक बहुत छोटी सी योजना रखी है। एक एसी की लागत 40,000 रुपये रखी है। कोई भी इसमें एक एसी पे दे सकता है और कम से कम 3 जो एसी देगा उसको हमारे पूज्य श्री भगत सिंह बाबा जी की मूर्ति पर हमारे बोर्ड लगते हैं गाँव दादा के, उसमें पास एक इसी का शिलालेख अलग लेगा, उसमें उसके नाम आएंगे। भविष्य में हमें बहुत जल्दी 90 कमरे करने हैं और 105 कमरों का लक्ष्य है ताकि 7 सेक्शन की हमें परमिशन मिल सके। अभी हमारे पास 6 सेक्शन की परमिशन है, 90 कमरे चाहिए, पर हम दिखाते हैं लैब को और तो करके वैसे 90 रूम है नहीं हमारे पास। तो इस सब में पूरे करने का काम शुरू करने वाले हैं। 6 रूम और बनेंगे, एक हॉल बनेगा, कोई बाकी जगह में। मैं तो आज तक आपको इस मंच पर खड़ा ये बात तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी काम शुरू किया है पास में पैसा नहीं, भागी अपना पे है। ये जो आज तो ये
इसका सितंबर हमने 22, अभी मैंने बंसाली साहब को बताया, मैं साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा हमने बहुत जल्दी कार्य पूरा कर दिया। मैंने कहा हमने 23 सितंबर को कार्य शुरू किया था, और तब ये दिलीप कारीगर यहाँ बैठा है, उसको मैंने कहा यार काम पूरा हो नहीं है, मैं 2 मंजिल तक तो तेरे को हाँ भरता हूँ, तो इसको भी आगे काम लेना पड़े तो आप ऐसा बता दो। मैंने कहा 2 मंजिल तक तो मैं हाँ भरता हूँ, आगे पूरा हो नहीं है, 2 मंजिल में ध्रुवगंगा होगा तो अपने देख लेंगे। तो जंदोई में चरणों में वंदन। समारोह के मुख्य अतिथि शांतिलाल जी साहब साहन, विशिष्ट अतिथि जयचंद्रलाल जी डागा, और अध्यक्षता कर रहे आज के हमारे मुख्य भामाशाह श्रीमान राज जी बंसाली, नैन्सी बंसाली, कन्हैयालाल जी साहब बोथरा, आई.एम. सुराना साहब, चंपकमल जी सुराना, और हमारी संस्था के अध्यक्ष स्तंभ विजय कुमार जी कोचर, निहाल जी कोचर, आए हुए सभी महानुभाव, पेरेंट्स, भामाशाह, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पूरा समाज, आपका बहुत बहुत आभार। शब्दों से करना पड़ रहा है, लेकिन हृदय में ऐसी भावनाएं हैं कि शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं हमेशा जब भी कहीं भी जाता हूं तो देखता हूं कि जैन समाज के लोगों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जैन समाज के लोगों को संस्कारित और जो एक कल्चरल जो हमारी वैल्यूज है उनके लिए जाना जाता है। इसी कारण से जैन समाज एक अपना अलग दर्जा रखता है। मैं पैसों की विरासत के हमने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन संस्कारों की विरासत के बारे में हम देखते हैं कि स्कूलों में इसकी चर्चा होती है, बाद में यदा कदा ही कहीं चर्चा होती है, लेकिन संस्कारों की विरासत वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत है। था तो वार्ता के दौरान एक बात सामने आई कि आपके परिवार द्वारा बंसाली स्कूल का जो एक संचालन किया जा रहा था, हम लोगों की जो मेरी माँ है, तो मैं समझ सकता हूँ उनके समकक्ष जो लेडीज हैं उन सभी ने उस स्कूल में अध्ययन किया है। जब मैंने इनसे चर्चा करी और मैंने घर में भी चर्चा करी, तो मेरी माँ के चेहरे पे एक प्रसन्नता थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा अपने आप में एक चैलेंज हुआ करता था। घर से बाहर निकालना बच्चियों को बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता था, और इनके परिवार द्वारा वो स्कूल निःशुल्क चलाई जाती है। That legacy he carries and he continues. Again, मेरी माँ ने ये भी बताया कि इनके घर से हमारे को छाछ दी जाती थी, गाय थी, तो बटर मिल्क जो है, क्योंकि मेरा ननियाल और इनकी जो स्कूल है वो बहुत करीब में थी, तो दोपहर में ये छाछ दिया करते थे। तो आप ये समझिए उस समय कितना क्रेज था। आज सुबह भी जब मैंने माँ से चर्चा करी तो वो भाव विभोर हो रही थी कि वो गोविंद राम भिखनचंद, उनके नाम से, मतलब उनके मुंह से यही नाम निकला। श्री राकेश जी कोसर मंच पे पधारे और निष्काम कर्मयोगी सौम्य स्वभावी श्रीमान राज जी बंसाली के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन। हे मानव द्वारा परमात्मा प्रदत्त सृष्टि में शाश्वत मानवीय मूल्यों को निरंतर परिभाषित एवं प्रचार किया है। आपने अनुरत सामाजिक में अपनी शक्ति संपत्ति का सदुपयोग किया है। ऐसा आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। ये शिक्षा जगत के कुशल अनुशासता, सभ्यता संस्कृति के संपोषक, आपने शिक्षा जगत में अद्वितीय सर्वांगीण विकास
कायदेदान बिल का प्रत्यक्ष होगा, वही आपकी सीएम डी के मान्यता पर सहयोग से यह संस्था निरंतर उज्ज्वल पड़ाव का निर्माण करने में सक्षम होगी। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ सुदृढ़ जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपके इस अविस्मरणीय योगदान से मुक्ति होकर आज दिनांक 27 नवंबर 2024 को आपके कदमों में अभिनंदन समित करते हुए गौरवान्वित है। फोटो अच्छा करो, चिंता नहीं। हाँ आगे से ऐसे पूरा ओके या मैम एक मिनट एक सेकंड और प्रत्येक दिन बैठ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा जैन पब्लिक स्कूल की कविता शर्मा अगर माता सरस्वती की असीम कृपा से इस शैक्षिक जगत में कनक देवी मीनाब चंद जी बैद की स्मृति में श्री हरिचंद जी और तारा कुमारी कांकरिया और राजकुमारी सोनलाल जी भाटिया की स्मृति में श्री सुरेंद्र जी भाटिया द्वारा 25-25 लाख रुपए की राशि श्रीमान हनुमान मंदिर साहब सिपाही की अध्यक्षता के कार्यकाल के में भेंट की गई। स्कूल का आज के समारोह के अध्यक्षता श्री राज जी बंसाली और नैन्सी जी बंसाली कर रही है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे सबसे पहले राज जी बंसाली, जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ मुझे ये वाशिंगटन में मुझे मिले थे। जब मेरा इनसे परिचय हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि इतने सहृदय व्यक्ति हैं। इनसे करीब मेरे उस वक्त आधे घंटा बात हुई। उन्होंने बीकानेर के बारे में और साधु महाराज की मिशन के बारे में बहुत हमें बात की। तो मैं उस वक्त लग रहा था कि इनकी बीकानेर से बहुत बड़ा अच्छा लगाव है और ये आज वो लगाव सामने आया है। मैं समझता हूँ कि इनकी माता जी श्रीमती चैतन्य देवी बंसाली जी, जिन्होंने कि इनको इतने अच्छे संस्कार दिए, उन संस्कारों का परिणाम है कि इन्होंने उसी भावना के अनुसार अपने दिल खोल के जैन पाठशाला सभा को करीब 1 करोड़ रुपए का दान इन्होंने यहाँ हमें दिया। और मैं समझता हूँ इनकी मन की भावना जो है ये हमेशा हमारे से जुड़े रहेंगे और हमेशा इस पाठशाला को सहयोग करते रहेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीकानेर के बहुत से जो जन्मे जाए हैं, बीकानेर के जो रत्न हैं पूरे विश्व में छाए हुए हैं, वो अगर बीकानेर को नहीं भूलें, जैसे इन्होंने बंसाली साहब ने जो बीकानेर को याद रखकर, जबकि अमेरिका रहते हैं फिर भी इन्होंने बीकानेर को याद किया और बीकानेर में जुड़ने के लिए इन्होंने यहाँ पूरा जुड़ाव किया और जुड़ने के लिए इन्होंने इतना बड़ा दान किया। अगर जो विदेशों में रहते हैं, जो भारत के अन्य भागों में रहते हैं, अगर बीकानेर को याद रखें तो हो सकता है कि बीकानेर का बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो। मुझे उन लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो बीकानेर को याद रखें और जो यहाँ पढ़े लिखे हैं बच्चे वो बीकानेर को याद रखें और स्कूल को, कॉलेज को सहयोग करें, जिससे कि ये जो जैन पाठशाला सभा की जो ये जैन पब्लिक स्कूल है दिनों दर आगे बढ़ती जाए और इसका विकास हो और ये एक हिंदुस्तान के अंदर प्रथम रैंक की स्कूलों में इसकी गिनती की जाए। इसी शुभकामना के साथ जय जिनेंद्र। नहीं बदमाश का होता है, आरती के दीप और पूजा के फूल ने बताया है कि अभिनंदन दानवीर बामाओ साहब का होता है। आज के इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित
श्री राजी बंसाली मैडम, चेतन कुमारी बंसाली के विंग, भाई हर्ष के ब्लॉक के लोकार्पण विंग के अवसर पर मैं आप सभी का, विशेषकर बंसाली परिवार का बीकानेर जैन पाठशाला की सभा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीकानेर के निवासी और अमेरिका के प्रवासी श्री राजी बंसाली ने इस जैन पाठशाला सभा में दिल खोलकर अपना सहयोग दिया है। ये संस्था आपका उपकार, आपका सहयोग और आपका जो है नहीं भूल सकता। चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। इस प्रांगण में हमारे भाई बहनों, बच्चों और स्कूल के अध्यापक, उनके सहयोगी, सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र, सभी को हमारा नमस्कार। सम्मानीय मंच के अंदर में आप सबका परिचय दिया हुआ है, मैं दोबारा बोलने की विषय भी समझता नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आज राजा बाबू बंसाली, उनके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा, परंतु पहले जो ये अपने जैन समाज की जो स्कूल आज इतने आगे बढ़ रही है, आज इतने कम समय के अंदर में इसको इस ऊंचाई पर आज यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री और सभी सहयोग, उनके सहयोगी फैकल्टी और छात्राओं ने जो काम किया है, उनको भी मैं दिल से बार बार धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु, वीर प्रभु ऐ शक्ति प्रदान करे और हमारे जैन जगत के इस विद्याशाला के अंदर आज शिखर पर जावे, यही मेरी शुभकामना है। मैं राजा बाबू के बारे में थोड़ा बहुत पारिवारिक मैं जानता हूँ। ये परिवार जो है, ये भंसाली परिवार बीकानेर के, और इनका पहले मेडिकल का मैन्युफैक्चरिंग था। तो प्रताप मल गोविंद राम बोल के अमृतांजन माँ माता था, और इनके माताजी के बारे में विशेष तौर पर बोलूँगा, चेतन भाई के। एक इतनी धार्मिक महिला और इतना मतलब गुरुदेव के धर्म के प्रति इतने लालायित थे कि वर्तमान आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब का जो दीक्षा देश नोट में हुआ है, उस टाइम में उस बुक में अंदर इनकी माँ चेतन बाई का दही झोल करते हुए फोटो आया है। इनकी माँ की मैं विशेषता कितने भी करूं उतनी मेरे लिए शब्द कम है। आज राजा बाबू ने यहाँ जो काम किया, और भविष्य में मैं यही चाहूँगा राजा बाबू से कि राजा बाबू, आप 4 भाई 2 बहन, और सबसे मेरा घनिष्ठ संबंध था। और इनके माताजी 4-4 महीना चौका करती थी नाना गुरु के समय, और साधु संत और बैरागियों को जिस हिसाब से वो पालन पोषण करती थी, वो सबने मैं आँख से देखा हूँ। तो मैं आपको यही अनुरोध करूँगा कि आप आइए और अपने जो यहाँ पर हमारे जैन पब्लिक स्कूल के अंदर में आपका जो सहयोग है, मैं आपसे तहे दिल से आपकी माता जी को पूरे स्मरण करते हुए, विक्रमचंद शाह तो सादे सीधे सरल बैठे रहते थे, इनके घर में माँ लक्ष्मी रूपी थी,
इनके घर में माँ धार्मिक रूप में एक सजग प्रहरी एक औरत थी, मैंने देखा है। मैंने 7 साल तक इनका नेताजी सुभाष रोड के अंदर कमल जी और मैं दोनों साथ में भोजन करते थे। उसी टाइम में आपका नाम भी चर्चा चलता था। इनका आना जाना थोड़ा कम होता था यहाँ पर, परंतु इनकी माँ इनको कभी भी राजा राजा आयो को ले राजा ऐसे याद करते थे। इनके बड़े भाई मोहनलाल जी, 2 नंबर कमलचंद जी, 3 चंद विमल चंद जी और 4 नंबर राजा बाबू। ये 4 नंबर आने में थोड़ा सा उनका थोड़ा सा मानसिकता, उनकी माँ जो इनको याद करती थी, राजा आइए राजा आइए राजा आइए। हम लोग 70,000 बच्चों को संचालन करते हैं भगवान महावीर एजुकेशनल ट्रस्ट। आजकल शिक्षा क्षेत्र, स्पोर्ट्स एकेडमी और टेक्निकल चीज, ये सब चीज़ों में अपने को थोड़ा बड़े चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ने में सक्षम हों। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। एक बहन इंदिराबाई जो रायपुर में धारीवाल परिवार को दी हुई है और एक यहाँ सुखोनी परिवार में दी हुई मोहनलाल। कुछ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ की इच्छा थी कि कुछ बीकानेर में कोई ऐसा काम किया जाए। उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैंने चेष्टा ही की है। पता नहीं कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, और इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ महेंद्र कुमार जी अग्रवाल को। इन्होंने रात दिन मेरे साथ मेहनत की कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले। फिर विजय कुमार जी को और फिर मानक जी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई बात। लेकिन इनके सहयोग से ऐसा सहयोग बना कि जनवरी में आया और तुरंत आते ही मिसेस पानी को देखा और यहाँ का काम देखा तो मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पता नहीं मेरी माँ की मैंने इच्छा पूरी कर पाई है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने प्रयास ही किया है और जहाँ भी वो है देख रही है कि मैं चेष्टा कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का सहयोग, खासकर विजय सिंह जी बहुत रफ्तार से इन्होंने काम किया, उसके लिए काम है। Dear each member community, dear principal, dear each faculty and students, we feel so privileged and blessed to have this opportunity to attend this wonderful celebration of Sri Jain Public School, to spend your special time to share the happiness with us. And we believe in education, and education is the power and the future, our next generation kids. So together, by working together, thank you for giving us an opportunity to be part of this community. And together, we will make Sri Jain Public School greater and the greatest in this big community. Thank you. God bless. श्रीमान कन्हैया जी पोखरा से अनुरोध करूंगा। साल वाला जब आप से अनुरोध है कि मंच पे आए और साल वाला के साथ हमें लाभान्वित करें। विमल जी को वो मंच पे पधारे। अनुरोध करूंगा श्रीमान शुभकरण जी दसानी
से अनुरोध करूंगा बसरा जी मंच पे पधारे और महावीर जी का शाल ओढ़ा के स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करें। नीतू को शाल ओढ़ा के और मोमेंटो बहस करने हमारा शिवजी मुनोद के यहाँ पे और शाल ओढ़ा के स्वागत करें मुनोद साहब का। कोई पधारे हो मैं अनुरोध करूंगा। जब महल बन जाता है या भवन बन जाता है तो हम सब उस महल की भवन की तारीफ करते हैं, लेकिन जो उस भवन को या जो उस महल को बनाता है उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो मेन चलवा हैं या आर्किटेक्ट हैं या कुछ भी हैं, दिलीप जी, उनका हम आज स्वागत करना चाहेंगे। रात को 12 बजे तक इस प्रांगण में इन्होंने काम किया है और सब जगह और अच्छे कार्यकर्ता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है।